There is something about mountains. You just want to sit and look. Such places make you want to stop again and again. और हवा भी तेज़ हो गई है यहाँ पे। ओ भाई साहब, मैं भी वही हूँ ना, राइड पगलू, बाइकर पगलू हूँ मैं। आई एम फीलिंग द चिल्स। दिस इज़ वेयर आई स्टेड। हेलो सो हेलो गाइस, basically I am leaving for Uttarkashi today, and this probably I am going to Gangotri, I am not sure. I just left my Rishikesh home and I probably reach Gangotri or Harshil at around 4 and 5 p.m. This is what I am aiming for, but let's see. This place is Gumaniwala. It's my hometown. Generally I start my rides from Delhi, but this time around I am doing this from Rishikesh since I was home and my parents are leaving anyway for 2 days going to their village, so I thought why not. So here we are on my KTM 390 adventure, and this is another adventure brewing up today. I hope that the path is clear and I don't get to see too much traffic. That is what I am hoping for, but let's see. Even if I see too much traffic, it doesn't matter that much. अभी मेरे को गाना याद आ रहा है, दिस इज़ दी एंड। उसका म्यूज़िक, लिंकिंग पार्क का जो गाना है दिस इज़ दी एंड, उसका म्यूज़िक भाई अलग ही कुछ बात है उसमें। जब भी सुनता हूँ तब जाते हैं, होश नहीं उड़ते। मतलब आई फील गुड, आई फील कंटेंट। और कंटेंट से याद आया कि मैं कंटेंट शूट करने भी जा रहा हूँ। छी, बहुत ही ख़राब बोला मैंने, ये बात सुन के उल्टी आ गई। सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू start our mountain ride. From this left the mountain start and the actual ride begins. Gangotri is showing 263 और मुझे मैप में दिखा रहा है 256। अब मुझे नहीं पता क्या सही है, but I would still trust Google Maps over this milestone, या फिर क्या बोलें, किलोमीटर बोर्ड। Our ride has officially begun to Gangotri. We'll see if we can make it in 1 or 2 days. If I can make it to Gangotri on time, I'll have to skip lunch. That's how I can probably make till there. So let's see. This is our Rishikesh का व्यू, पहाड़ों वाला व्यू। एक मैगी खानी तो बनती है यार, पर अभी घर से मम्मी ने इतना खिला के भेजा हुआ है कि मैगी तो छोड़ो, एक बूंद पानी की भी जगह नहीं है। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट इन्जॉइंग द राइड। पता नहीं, ऐसे 4:30 दिखा रहा है कि आई विल रीच बाय 4:30 देयर, एंड आई एम नॉट श्योर। आई थिंक आई विल टेक मोर देन दैट। आई विल प्रॉब्ली रीच बाय 7 or 8 बिकॉज आई नो हाउ आई एम गोइंग टू राइड। आई एम गोइंग टू राइड वेरी स्लोली. I'm not going to go over 50, and yeah, so I feel I'll have a long way to go right now, man. 7 hours, 7.5 hours it's showing in my map, but I don't know how long it will take. It will definitely take more than that. How is the view from front? That is what I am most excited about. Is it better? Is it worse? Is it bad? So in this ride we are going to start another series, which is Flowers of Himalayas. I will collect some flower, a habit which one of my friend Suparna taught me, to collect wild flowers from the places you go and keep them as your memory. So in all of my past trips I have done that. When you look at them after you come back, those flowers, those small flowers which you can only see on higher passes of Himalayas, they become the gateway to the memory. You again go back to the same place, the smell of the place, the vibe, you feel everything. That is what I take back from these flowers. So yeah, this is what I'm going to do this time around to shoot the flowers I take. ये टनल पहले नहीं था, चंबा टनल। आई एम सीइंग दिस फर्स्ट टाइम। तो उत्तराखंड में भी टनल आर नाउ being built. यहाँ पे पहाड़ों पे कितने सारे गेंदे के फूल हैं। Snow capped mountain range is visible now from here. It was visible earlier as well, but now it is more clearly visible. I am 199 kilometers away from Gangotri. 5 hours 41 minutes it is showing. I have been riding constantly from past 2 hours. I don't feel tired, and this is great thing about this bike, that
You can really ride long distances. It's that comfortable that I came from Kashmir to Delhi in a day, probably 15 hours, but it was non-stop. I did not stop anywhere, and even then I did not feel any tiredness. There was some slight back pain, but other than that, everything was fine. So I guess do you can really munch miles on this bike and do not think about tiredness or anything for that matter. That's what I've been doing, riding calmly at 40, 50. I don't need to hurry, I don't need to rush. I just want to enjoy the view. But slowly the temperature is dipping. I'm starting to feel a little bit cold. I probably need to either close this jacket and all the vents, or I'll have to wear another layer of jacket after an hour, I guess. But for now it is manageable. But I can really feel a cold. And also, since I can also see the mountain ranges from here, that is also adding up to the cold, I guess. See those mountain ranges now clearly visible from here. So I have just reached Tiri, and from here Uttarkashi is just 55 or 60 kilometers. I am getting close to my stay today. I think it is not less than, but I think it is just 110 kilometers, which will take me around another 3 hours to reach. Just one or two. But theek hai, it doesn't matter. I can see Tihri Dam from here. Not Tihri Dam exactly, but the Jheel lake, and so much water. People say that it is so much water that if someday this dam breaks, even Delhi will get flooded. I'm not sure about that, but I can see a lot of destruction this time around. Every 1 or 2 kilometers you can see landslides and a lot of debris on the road. What do we call it? Just nature doing its job. Somewhere we also have to learn the balance, that how much we can change or how much we can build around nature so that it doesn't get affected or destroyed. Because the way we have seen it, that nature will take over one day or another. Nature will win, that's for sure. There is no way around it. ये आई थिंक उत्तरकाशी में एंटर हो चुके हैं हम, एंड दिस टनल विल प्रोबेबली बाईपास ऑल द उत्तरकाशी का जो शहर है. दिस टनल विल आई गेस बाईपास ऑल ऑफ दैट. ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे छोटा टरबाइन लगा हुआ है बिजली बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है. और यहाँ पे इस पानी के गिरने से रेनबो बन रहा है. ठंडा लगा तो मज़ा तो आया थोड़ा सा. सो देर इज़ अ डैम, प्रॉपर डैम. सो ऊपर देर आर टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मेड बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द वाटर. ये देखो, ये पानी गिर रहा है यहाँ से, और बच गए हो, मई बच गए हो. 2.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा है बस. अब कह रहा है कि 4:30 तक तुम पहुंच जाओगे. बट आई डोंट नो इफ़ आई शुड स्पीड अप नाउ और जस्ट राइड लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर. बट अभी के लिए तो मैंने गंगोत्री का ही डाला हुआ है. वाह क्या झरना है, वाह क्या पानी निकल रहा है. जो बात है, मज़े तो आ रहे हैं भाई. देयर इज़ समथिंग अबाउट माउंटेन्स दैट यू जस्ट लव. यू वांट टू सिट एंड लुक फॉर अ व्हाइल. आई थॉट ही इज़ गोइंग टू टॉक टू मी, बट ही वाज जस्ट प्रेसिंग ऑन unnecessarily for no reason at all. What kind of a bitch behavior is this, पूजा. अभी लोकेशंस और जगह एकदम से चेंज होने लग गई है. एक डिफरेंट टेरेन, एज यू कैन सी, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेरेन नाउ.
वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी वाले पहाड़ थे, यहाँ पे पथरीले पहाड़ ज़्यादा हैं। और नाउ आई एम स्टार्टिंग टू सी वाइल्ड फ्लावर्स थोड़े थोड़े, और हवा भी ज़्यादा ठंडी है अब यहाँ पे। इट इज़ जस्ट 58 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गंगोत्री, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी मुझे आज गंगोत्री जाना चाहिए या नहीं। आई विल प्रॉब्ली स्किप गंगोत्री टुडे एंड विल गो टुमारो अर्ली मॉर्निंग, बट लेट्स सी, क्या पता आज ही चला जाऊँ। ऑल डिपेंड्स ऑन के इफ़ आई फाइंड हर्षल बेटर, विच इज़ नॉट दैट लेट, इफ़ आई कैन गेट बैक and reach Harshal before 6. See, the locations have changed now. Slowly vegetation जो है वो कम हो रहा है, and you can see the पहाड़ mountains without trees. Earlier it was dense mountains, now it is just mountains. Harshal is still 31 kilometers from here, but the view has completely changed. I can also feel a little bit of power loss in my bike. Not that much, not Ladakh level, but there is a power loss, very slight power loss. पता नहीं कितने countless waterfalls I have seen till now. मन करता है हर waterfall पे रुक के थोड़ी देर बस बैठूं और देखूं, but पहुंचना भी है, so I am just enjoying the view while I am on the go. हवा भी तेज़ हो गई है यहाँ पे। ओ भाई साहब, जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ, मेरे आगे JCB भाई साहब चल रहे हैं, जिनसे आगे पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इनसे पंगे लेना खतरे से खाली नहीं है। और JCB भाई साहब से आगे निकल चुके हैं। हर्षल अभी भी 28 किलोमीटर दूर। होल एरिया इज़ कवर्ड विद एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल ट्रीज़। यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और हर जगह पे सेब रखे हुए मिल भी जाएंगे। लोग साइड में खड़े होके दिल भी सेलिंग एप्पल्स है। बहुत लंबे लंबे दूर दूर तक सिर्फ ये सिर्फ सेब के बाद। आई गेस हर्षल इज़ जस्ट 11 किलोमीटर्स। सब वापस आ रहे हैं, एवरी वन इज़ रिटर्निंग। हमेशा की तरह मैं ही हूँ जो लेट जा रहा हूँ। रात होने के टाइम पे आई रीच प्रोबेबली। एक तो एकदम से ठंड इतनी बढ़ गई है यहाँ पे, मेरे हाथ कुल्फ़ी की तरह जम चुके हैं, बट मज़ा आ रहा है। फिर भी राइड करने में फिर भी मज़ा आ रहा है। वो क्या बोलते हैं उन्हें, मैं भी वही हूँ ना, राइड पगलू, बाइकर पगलू, सॉरी बाइकर पगलू हूँ मैं। बस हर्षल में कुछ अच्छा सा सस्ता रहने का जुगाड़ मिल जाए, बस उससे बढ़िया कुछ चीज़ ही नहीं होगी आज। ऐसा लगेगा कि मेरा आना सफल हो गया। अभी यहाँ तक तो होटल हैं जो अभी तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे ये एकांतम ही लिखा हुआ है क्या, एक दंतम क्या हुआ है, होटल एंड स्टे रेस्टोरेंट। तो ऐसा ही बस ठीक ठाक सी एक जगह मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए बताओ। तो एटलीस्ट यहाँ तक भी है स्टे, जो मेरे सबसे बड़ा डर था। लो जी, हर्षल भी क्रॉस कर दिया एंड फ्रॉम हेयर गंगोत्री धाम is only 20 kilometers, and with every passing second the cold I am feeling, the chills, the cold। और बाइक की गति भी उतनी ही धीरे होती जा रही है जैसे जैसे हम थोड़ा और अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर पूरा बीच बना हुआ है, इस बीच के बीच में जाके बैठ जाता हूँ। क्या ही बोल रहा हूँ। लो जी, हर्षल भी क्रॉस कर दिया। आई हैव क्रॉस्ड हर्षल एज वेल एंड फ्रॉम हेयर गंगोत्री इज ओनली 20 किलोमीटर्स। गंगोत्री धाम is only 20 kilometers, and with every passing second the cold I am feeling, the chills, the cold। और बाइक की गति भी उतनी ही धीरे होती जा रही है जैसे जैसे हम थोड़ा और अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर पूरा बीच बना हुआ है, इस बीच के बीच में जाके बैठ जाता हूँ। बिल्कुल क्या ही दिख रहा है ये पहाड़, बर्फ़ में ढका हुआ, मज़ेदार एकदम। वाह क्या बात। फाइनली I have reached। बाइक जाएगी आगे, बाइक है। ब्रूनी
सो मैं जैसे ही पहुंचा गंगोत्री धाम के दर्शन, गेट बंद हो चुके थे, तो मेरे को एंट्री मिल गई बट मेरे घुसते ही गेट बंद हो गए थे, तो ना मैं रिकॉर्ड कर पाया ना ही मैं कुछ शूट कर पाया। और बस अब मैं वापस निकल चुका हूँ हर्षिल की ओर, और रास्ते में कहीं पे जाके अच्छा सा कुछ खाना है। बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैंने तब से रास्ते के चक्कर में कुछ खाया नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो हर्षिल पहुंच के कुछ अच्छा सा कुछ खाना है। अभी तक यही प्लान है बस। सो या तो क्विकली दर्शन हो पाए मुझे गंगोत्री के, जितना समय था उसके हिसाब से चीज़ें हो गई। नाउ आई एम गोइंग बैक टू हर्षिल। रैपिडली द मर्करी हैज डिप्ड एंड I can literally now feel the cold in my bones. So this is where I stayed for the night. गंगोत्री से वापस आने के बाद गंगोत्री से 30 किलोमीटर्स आगे मुझे ये जगह मिली और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, तो मुझे लगा यही जगह क्यों ना रुका जाए। अब मैं यहाँ से वापस निकलूँगा उत्तरकाशी के लिए, बट आज का थोड़ा चिल दिन है, तो आज इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। बट जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। मेरा तो इस आधा व्यू को देख के मन कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ ही ना। और ये मेरा इस खूबसूरत व्यू के साथ में ये मेरा होटल बेड आज का, जहाँ पे मेरा सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। So this is where I stayed last night. So ये गंगोत्री से अराउंड 35 किलोमीटर्स पहले पड़ता है और ब्यूटीफुल लुक। मेरे को अभी चांद भी दिख रहा है और यहाँ पे आसमान कितना ज़्यादा साफ़ है। अब मैं 5-10 मिनट में यहाँ से वापस निकलूँगा अपने नेक्स्ट चरण के लिए। I'll explore this place a little bit and then I'll leave. और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि in this videos I'll be collecting small wildflowers, so that is another thing I'm going to do today. So yeah, that's the plan. आज वापसी। So this is a wildflower, these beauties. There is another wildflower I can see. इसका नाम भी हर्षिल हाइट्स है और ये खड़ी है रेखा ठंड में। चल दिए हैं अब एक नए रास्ते की ओर, देखते हैं आगे क्या आता है। आई थिंक यहाँ से ऊपर ही जाना है। वो माउंटेन के हायर पासेस पे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये एप्पल ट्रीज़, इसी पे तो इतने सारे एप्पल लगे भी हुए हैं, छोटे छोटे से ग्रीन एप्पल। अभी ग्रीन एप्पल हैं इन पे, इस पे लग रहे हैं 2 एप्पल। एप्पल ट्रीज़ अपने आप में देखने में कितने ड्राई होते हैं। वाह, कितने बड़े बड़े सेब के बाग हैं यहाँ पे। ओ, इस पे कितने सारे एप्पल लग रहे हैं। और वहाँ पे पीछे, ओ भाई साहब, एक और छोटा सा वाइल्ड फ्लावर मुझे मिला है दिस। और ये भाई साहब जाएंगे यहाँ पे। बहुत ही पतली सड़क है ये, यहाँ से सिर्फ एक बस या एक बड़ी गाड़ी निकल पाती है एक बारी में, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्कोप टू even make this road wider. There is not space. The left side, it's all boulders, it's hard rock, and I don't think that they should even touch these places now.
ऑलरेडी ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है. This area is very sensitive and it's better to just leave these places as they are. There is a minor inconvenience to people, but what if we are not even able to come to these places? We damage them so much. So it's better to bear a little bit inconvenience than to just completely ruin the place. That's what I feel. What do you feel? There is another waterfall I can see behind the bridge. I am sure there must be a way to get to that bridge. Probably. नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपन चल तो रही है सीधा सीधा, यहाँ से भी सीधा सीधा चल लेंगे. आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी वे टू क्रॉस. बट कितना खूबसूरत वाटरफॉल, एक बहुत ही वियर्ड जगह पे स्पेस नहीं है वहाँ पे. आई सी अनदर वाइल्ड फ्लावर. और ये तो कुछ इन दी एंड यही रह जाती है मेरे पास मेमोरीज किसी जगह की. एक ये भी है फ्लावर, और ये एक और वाइल्ड फ्लावर मिल गया है मेरे को. यहाँ पे खड़ी है रेखा. यहाँ पे है ये वाइल्ड फ्लावर. और फिर ऐसी जगह पे तो मन करता है बार बार रुकते रहो, जाने का मन ही नहीं करता.